इस सेवा के लिए यूपीएससी के तहत आईएएस, आईपीएस और आईआरएस की तैयारी करनी है तो आपको जीतो को समझना बहुत जरूरी है। जीतो देश की एक ऐसी संस्था है जो प्रतिभाओं को तलाश करती है, फिर उन्हें तराशती है और उसके बाद देश सेवा के लिए उन युवाओं में देश के प्रति समर्पित रहने की भावना को पैदा करती है। भारत निर्माण के लक्ष्य को लेकर चलने वाली जीतो संस्था इकलौती ऐसी जैन संस्था है जहां युवा को स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सात्विक जीवन जीने की कला को सिखाना और युवा पीढ़ी सात्विकता पर कायम रहे, इसके लिए भी प्रयासरत है। जीतो राजनीतिक मूल्यों को और ज्यादा सशक्त करने की पक्षधर है ताकि युवा पीढ़ी संभलकर विवेकानंद की भांति भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। IPS aspirant isn't just preparing for an exam. They are gearing up to weave the fabric of a vibrant, inclusive India. So let's embark on this journey of empowerment and innovation. Let's build the Bharat of our dreams महामंत्र के माध्यम से गुरु वंदना, उसके साथ ही राष्ट्रगान और फिर शुरू हुआ जैन इंटरनेशनल ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन का पैनल डिस्कशन। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Let's give a huge round of applause, guys. Go Ranchi, Shri Gautam Ji Jain for his welcome address. Good afternoon everybody. So आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशली मैं एक छोटी सी लर्निंग बताता हूँ। क्या कोई भूखा आदमी दूसरे को खाना खिला सकता है? शायद ना। सो यदि हमको भारत का निर्माण करना है तो पहले हम लोग को स्वयं का निर्माण करना पड़ेगा। से अर्श का सफ़र किया है और आज आप सबको एक अच्छी लर्निंग और मोटिवेशन मिलने वाला है और साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन के लिए अच्छे गाइड लाइफ टाइम के लिए उपलब्ध रहेंगे जो आपको वहाँ तक ले जाएंगे। सो आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत, हमारे आगंतुक सारे गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत और मैं चाहता हूँ बिना समय लिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। थैंक यू। Thank you for your warm and kind words. They are very uplifting. Now that the foundation has been laid, let's further strengthen the pillars of today's program with the warm words of the super lady whose determination is taking our Jeeto platform to a next level. We welcome Jeeto Ladies Chairperson Srimati Priyanka Patni to address the gathering. Good evening everyone. Good evening distinguished guests, esteemed dignitaries and our future leaders. As the Jeeto Ladies Wing Chairperson, it's my immense pleasure and honor to welcome you all to the Bharat Nirman event, a platform dedicated to nurturing and guiding the bright minds aspiring to careers, the IAS and IPS. Today, we are privileged to have among us our Vice Chancellor, Dr. Ajit Kumar Sinha sir,
whose visionary leadership continues to inspire us all, the distinguished IPS officer Tanu Jain and IRS officer Sri Ambul Samaya sir, Sri Vinod Ji Duggar, who is an honorary consul of the Republic of Malwai, Kolkata, and a chairman of Jito Administrative Training Foundation. On behalf of Jito and myself, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests for gracing Vibrant Bharat. Thank you so much. We would like to invite Mr. Rishabh Jain, the Chief Secretary of Jito Ranchi Youth Wing, to introduce. Ladies and gentlemen, yes, our panelists are here, and give a huge round of applause and let's welcome her and Sri Ambul Samaya ji and Dr. Tanu Jain with a round, loud applause. I request Mr. Duggar to please join in welcoming. जय जैन सभी को। श्री विनोद जी दुग्गड़, इनके बारे में तो कुछ भी कितना भी बोलूं कम पड़ेगा, बट टू स्टार्ट विथ श्री विनोद जी दुग्गड़, द co-promoter of RDB Group, one of the emerging business conglomerates in India, has over 25 years of experience in diversified businesses. The RDB Group has investments in real estate, infrastructure, tobacco, bulk packaging solutions, transport and logistics, automobiles marketing, FMCG products, defense, education, hospitality, and entertainment. The RDB Group has a pan-India presence with all the necessary infrastructure, manpower, and finance. The organization fosters a dynamic environment of perseverance and professionalism with a workforce of over 2,000 employees. A supporter of innovative companies and a guiding force for their leaders, Mr. Duggad is key of strategic investment and partnerships. Vinod Duggad is actively involved to address in front of all the students and especially all the gurus who are sitting over here, because I've heard that a lot of principals are over here. So my special pranam to all the teachers, faculties over here. See, when we talk about the Bharat Nirman, what a special name has been created by Ranchi chapter. So Ranchi has always been a foundation for doing something different. I still remember a few days back on 15th of November, it was been declared that from the special point Khunti, बोल के एक जगह है, there it's called Pradhan Mantri has came with an Viksit Bharat, not only Bharat Nirman, because Bharat Nirman has been already been done. Globally, we are being recognized all over that today is India is the country which world is going to bank upon. Ladies and gentlemen, आने वाले 10 से 15 साल के अंदर we are compelled to give this country on your hand. Am I right? कल के डीसी तुम हो, कल के वीसी तुम हो, कल के जज तुम हो, कल के प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर सब तुम हो, है ना? नाउ हम टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सब्जेक्ट वाइज, जनरल स्टडीज वाइज, क्योंकि यूनिवर्सिटी है ना जहाँ पे 30 सब्जेक्ट में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, जहाँ पे ट्राइबल रीजनल लैंग्वेजेस के 9 सब्जेक्ट हैं, जहाँ पे 22 कि आज एक आईएएस अधिकारी डॉक्टर तनु जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर जैन की उपलब्धियाँ हम सब के लिए एक आदर्श है। कई चुनौतियों को पार करने के बाद आप यूपीएससी की परीक्षा पास कर एक विजेता के रूप में हमारे बीच में उभर कर आई हैं। आपकी यह जीत आपकी इच्छा शक्ति, उत्साह को दर्शाता है। लचीलापन, बुद्धिमत्ता एवं लक्ष्य के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता आपके व्यक्तित्व के विशेष गुण हैं। आप न केवल यहाँ अपनी यात्रा को साझा करने आई हैं, बल्कि हम सब के बीच में प्रेरणा, उत्साह और जैसा कि विनोद जी ने कहा कि भारत निर्माण तो हो। मैम, जय जोहार। शानदार बच्चों, आज मुझे यहाँ जिस काम के लिए बुलाया गया है वो है भारत निर्माण, और ये मेरा
सिर्फ सपना ही नहीं, पैशन भी है। इसीलिए शायद आज तक जो भी मैंने किया, कहीं ना कहीं वो इस एक सपने को लेकर मेरी यात्रा रही है। अगर मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम पॉइंट वाइज बातें करेंगे, क्योंकि एक सिविल सेवा में जो अफसर रहता है उसको सबसे पहली चीज़ जो सिखाई जाती है, पॉइंट वाइज बातें करेंगे, ताकि आप जब यहाँ से जाएं आपके पास कम से कम 4 या 5 पॉइंट ऐसे हों जो आपको याद रहें। हम चाहे कितनी कोशिश करें, लेकिन हमारी पहचान हमारे देश, समाज, कम्युनिटी, स्कूल, कॉलेज, जगह, परिवार, इन सब से है। यानी जब हम कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं समाज में, हमें वो इमेज भी कैरी करनी है। यानी कि अगर एक व्यक्ति गलत करता है, एक व्यक्ति ने कुछ गलत स्टेप उठाया, क्या होता है, वहाँ के लोग ऐसा करते हैं। एक भारतीय व्यक्ति ने बाहर जाके कुछ गलत किया, इंडिया के लोग ऐसा करते हैं। अब जिम्मेदारी किस पे आ गई? हर इंडियन पे। वो ठप्पा किस पे चिपक गया? हर इंडियन पे। यानी कि एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, एज अ पर्सन ऑफ झारखंड, एज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ योर, एज अ चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, आपको उन सब की इमेज को भी बरकरार रखना है बच्चों, क्योंकि आपके नाम से जाने जाएंगे कल को ये देश, ये जो आपका स्टेट है, ये आपके नाम से जाने। झारखंड के लोग ऐसे होते हैं, झारखंड का बच्चा देखो वहां पहुंचा, उसने ये एग्जाम क्यों। लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक गौतम जी, आनंद जैन जी, पायल सेठी जी एंड देवेश जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटिफुल इवेंट, एंड थैंक यू विनोद भैया, अम्बुल समैया, चांसलर सर, एवरी वन ऑफ यू। आपने हमें बुलाया, थैंक यू सो मच, बिकॉज the most lovely thing that I appreciate or I like is interacting with young bright minds. Thank you so much. Actually मुझे एक नाम मैं भूल गई, प्रियंका जैन जी, thank you so much. Women organizing for women and with women. Thank you so much. सभी को सादर जय जय। ऐसा बोलते हैं दुनिया में सबसे सरल काम होता है ज्ञान देना, बस वहाँ बैठना और यहाँ पे स्टेज देने में थोड़ा सा अंतर है। बट मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, बिकॉज हम भी उसी प्रोसेस से निकले हैं, पॉइंट वाइज अप्रोच। पहला जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है भारत निर्माण, तो आई वुड लाइक टू से कि ये सब आप अपने दिमाग में, दिलो जहन में डाल दीजिए। राइट नाउ इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बी इंडियन. Our country is in the sweetest possible spot, macroeconomically, fundamentally, taxation wise, every possible indicator is an enabler कि अपना कितना strong ecosystem है. मतलब I have heard people coming back now, एक reverse migration चालू हो चुका है, and this is the country right now which is ripe for the next Metas, Googles and Facebooks or Tesla to emerge. Next thing is कि this JATF seminar for civil services. So I have been a student of JATF myself, and I have seen what Vinod Bhaiya has done marvelously well in the Delhi hostel. So UPSC preparation के लिए the most देखिए जीटो ATF अपने आप में एक महान उपलब्धि है इस राष्ट्र के लिए। मैं तो जीटो ATF से जन्म से जुड़ा हुआ हूँ, विनोद जी जानते हैं। और बच्चों, अगर तुम्हें देश को आगे बढ़ाना है तो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जिनकी मानसिकता है कि हम IAS बनेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, कोई ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे धर्म की, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा भंग हो। जिससे देश आगे बढ़ेगा तो लोग कहेगा हमें दूसरा कलेक्टर नहीं चाहिए, हमें तो इसे कलेक्टर की जरूरत है। तो ये मनोभावना पहले होनी चाहिए। बट जब आप प्रिपरेशन करते हो, आप सबसे पहले मेंस की तैयारी करते हो, क्योंकि आप प्री निकाल के क्या कर लोगे, यू हैव टू क्रैक द एग्जाम इन वन गो। सो स्टार्ट विद द सिलेबस। आप सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकालोगे, सिलेबस के आप पेपर्स लिखोगे,
उसमें 40 लाइन आइटम्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आप उनके लिए कंटेंट डिसाइड करोगे कि आपको इस जगह से ये कंटेंट पढ़ना है। देन मतलब व्हाट आई डिड वाज कि आई लाइक पुट माय सिलेबस ऑन माय वॉल और मैं उसके लिए कंटेंट डिसाइड करा, लिस्ट बनाए। एंड देयर आफ्टर व्हेन आई फाइनलाइज्ड कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू रीड इन लाइक अलग अलग कंसल्टेशन करके सीनियर ऑफिसर्स से, पीयर ग्रुप से, नेट पे ढूंढ के कहाँ पे क्या मटेरियल अवेलेबल है, पूरा मटेरियल इकट्ठा करके माय टारगेट वाज कि मैं एज अर्ली एज पॉसिबल जो इसमें स्टैटिक पोर्शन है, तो द सिलेबस इज ऑफ 2 वेरिएंट्स। जो स्टैटिक होता है हिस्ट्री हो गई, अब बदलनी नहीं है। सो और सेकेंड हाफ इज करेंट अफेयर। एंड व्हाट आई हैड ऑब्जर्व्ड जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, यूपीएससी अगर 4 लाइन का एक क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें 2 लाइन हिस्टोरिकल या स्टैटिक पोर्शन की रहेंगी और 1-2 लाइन करंट अफेयर्स की रहेंगी। सो जो स्टैटिक पोर्शन रहता है आई वुड वांट टू कंप्लीट दैट एज सून एज पॉसिबल। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन जुलाई एंड मेरा टारगेट था कि दिसंबर तक, जुलाई ऑफ 2017 कि दिसंबर तक आई कंप्लीट ऑल द। कोई भी बता सकता है, लेकिन जब आप किसी एक ऑफिसर से बात कर रहे हैं तो उसको क्या ऐसे बात करनी चाहिए या उसके पास फैक्ट्स होने चाहिए? फैक्ट्स होने चाहिए उनको। वो इस तरह से बात करेंगे हमारी इकोनॉमिक स्थिति इसलिए खराब है कि वो इतने % से हमारा जीडीपी गिर रहा है या फिर इतने से बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट 7% के करीब है, इस कारण से हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा। तो अब आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं तो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। एक ऑफिसर को एम्पैथेटिक भी होना चाहिए कि नहीं, कोई व्यक्ति भूखा भी मर रहा हो तब भी मैं रूल को फॉलो करूंगा। क्या ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा होता तो मशीन रख लेते, मशीन से अच्छा रूल कौन फॉलो करता है? लेकिन एक अफसर इसलिए रखा जाता है ताकि उसके अंदर एक दिमाग के साथ दिल भी हो और वो ये देख सके कि अच्छा अगर माइंडसेट से पढ़ना है तो आपको फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, जब मेंस के माइंडसेट से पढ़ना है तब आपको कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जब आप पढ़ रहे हैं अगर आप दोनों पे शुरुआत में ध्यान देते हैं तो अच्छा है, लेकिन रिविजन के टाइम पे प्रीलिम्स से पहले आप फैक्ट्स ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए, फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स। वेयर एज फॉर मेंस यू कैन स्टार्ट राइटिंग, एक बार लिख के देख लीजिए, जो पॉइंट भूल रहे हैं उसे इंक्लूड कर लीजिए अपने आंसर। आप दोनों ने ही भारत के लोगों के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। तो मैम ने 5.5 साल से और सर अभी का आपका ही बहुत एक्सपीरियंस है अभी तक का, तो मुझे बस आप दोनों से ये जानना है कि अभी तक आपको भारत के लोगों के बारे में सबसे स्ट्राइकिंग, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लोगों के साथ डायरेक्टली काम करना होता है। तो बस मुझे ये चीज़ जानना था ऐसा IAS एंड IRS। मैं लक्षद्वीप गया था एंड लक्षद्वीप में चूँकि मुझे घूमना था तो जिस होटल में रुका था मैंने वहाँ के जो कुक थे उनसे बोला कि आप गाड़ी दे देंगे, मुझे गाड़ी से घूमना है, थोड़ा चक्कर मारना है। तो इनिशियली मुझे लगा साइकिल वाइकिल तो मिल ही जाएगी एटलीस्ट, बट उन्होंने मुझको 2 व्हीलर एक्टिवा दे दी। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि आपको डर नहीं लग रहा कि हम लेके चले जाएंगे? तो ही सेड कि भाई साहब आप आइलैंड में हैं कहाँ ही लेके जाओगे। तो दिस सिंबलाइजेज व्हाट इंडियन कल्चर इज। आप इंडिया में इंडियन नहीं होते हो, आप इंडिया के बाहर जाके इंडियन बनते हो। इंडिया में तो आप एक जगह के, आप जैसे अब मैं सागर से हूँ तो सागर में बुंदेलखंड है, चंबल है ना, अलग अलग एरियाज हैं, आप वहाँ के कल्चर को आप एंजॉय करते हो। सो बिकॉज जितना भी मैंने एज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री आई हैव ट्रैवल्ड, आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, आई फाउंड रियली नाइस पीपल एंड रियली डिफिकल्ट पीपल। मतलब इंडिया में जितनी इमोशनल और ह्यूमन रेंज है ऐसी कहीं नहीं है, मतलब दैट रेंज इज आई डोंट नो इनफिनाइट।